प्रैक्टिस फर्स्ट, ठीक है। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ and the question in front of you is this. You can note down the flight plan from your side. Okay, note this plan and let me know the chart number. Okay, because if it is not suggested to you that which chart you need actually to follow, then how you will get to know that which chart to be followed. कल मैंने थोड़ा सा hint दिया था and I get you to the charts. Today just open that and let me know which chart will be followed. ठीक है। एंड आज हम लोग चार्ट पुराना वाला फॉलो करेंगे, रूट चार्ट 1, नो वर्जन 2। ओके, हरिए, नोट द क्वेश्चन एंड लेट मी नो द चार्ट नंबर। सर मैं थोड़ा रास्ते में हूँ, 10 मिनट बाद से वो इंटरेक्शन होना शुरू होगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। गेट सेटल फर्स्ट एंड देन विल मूव अहेड। ठीक है। अल्फा जूलियट डेल्टा फॉर यू, which chart will be followed? Let me know. Chart number 4. Yes, chart number 4, right answer. ठीक है। So for this, chart number 4 will be followed, right? Done. And plan is in front of you. Chart number 4 will be followed. Now anyone can go ahead with the answers. Okay. Today we have Hotel Kilo Sierra. Okay. So you can start with your answers. Okay. Question is in front of you. Simply you can start with the answers. Or any other station, whoever is willing to participate for the answer, that will be much appreciated. Go ahead with the replies. So let me read the question number first for you. You are taxiing for departure on adjoining taxiway. Adjoining taxiway means there may be a junction of two taxiway, or there may be a separation of two taxiway after any point. तो उसको बोलते हैं adjoining taxiway. Like if you are on Charlie, maybe Delta is also starting from here, or from your taxiway only दो taxiway अलग अलग separate हो रहे होंगे. So this is known as adjoining taxiway. So you are reaching to adjoining taxiway or you are on adjoining taxiway. You see vultures gathered around a dead body. कहाँ पे gathered है, किस एरिया पे vulture gather हुआ है, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है. ठीक है, that will be used hypothetically. And give detailed report or suggest an action. ठीक है, तो आप रिपोर्ट करिए कि vulture वहां पे जमा हो गया है, that is a threat or that is a hazard. Request appropriate action. Yes, go ahead. Alpha Juliet Delta, you try to give the answer, or Sierra Hotel Alpha, any one of you?
अल्फा जूलियट डेल्टा और शेरा होटल अल्फा, इन्होंने क्यों? Victor Tango Alpha Juliet Delta, Chennai Tower. How do you read? Reading 5, sir. Then go ahead with the answer. क्या प्रॉब्लम है? आंसर देना शुरू करो. डोंट थिंक कि बाद में एग्जाम आएगा, बाद में तैयारी करेंगे. नो, बी प्रिपेयर्ड. ऐसा भी होता है कि अच्छे खासे स्टूडेंट जिनका फर्स्ट बार में क्लियर हो जाता है, सेकंड टाइम में फेल होते हैं. दैट इज वेरी मच अश्योर्ड. ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा. आपकी तैयारी अभी अच्छी रहेगी, बाद में प्रॉब्लम आ सकता है. यस, ट्राई टू गिव द आंसर. सिंपल है, ट्राई करो. Okay, sir. Mumbai Tower. It will go to ground because you are taxiing, right? Yes, sir. Mumbai ground. Vector Tango Alpha Juliet India on 1 to 1.9 9 type of 9 type of aircraft ATR 72 from Mumbai to Jamshedpur. Current position taxiway. Current position. Taxiway. Taxiway. Taxiway Charlie. Doing good. Sighted. Yes, sighted on the Sighted taxiway. vultures. Sighted vultures. सेंटेंस उल्टा बन रहा है. Sighted vultures. ठीक है. Yes, sir. Gathered around. Follow the answer. Sighted vultures gathered around on dead body of a dog. क्या देखा आपने कि vulture gather है on a dead body of a dog at adjoining taxiway, ऐसा करके. ठीक है. Yes, sir. Try to say that again from beginning. From the sighted. Yes, sir. Sighted vultures gathered around dead body of a dog. Right. Yes, sir. Of a dog. At adjoining taxiway, Charlie and Deb, like this. Adjoining taxiway Charlie request for another taxiway. नहीं, wait. Here you can say, ठीक है, पहले इसका रिपोर्ट करो कि ये प्रॉब्लम क्या है. ठीक है. This may be an hazard. ठीक है. Request appropriate action. बस वो खाली करवाएगा. This may be any hazard. This may be a hazard. Further instructions.
ठीक है, रिक्वेस्ट फर्दर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, रिक्वेस्ट अप्रूव एक्शन एंड फर्दर इंस्ट्रक्शंस कंबाइन करके बोल सकते हैं, ठीक है। यस सर। वेक्टर टैंक अल्फा जूलियट इंडिया। वेरी गुड, वेरी गुड। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Go to the next पावर question. को Yes. काउंट को तो यहाँ से बोलो लेना होगा। क्या है फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिपेंडिंग ऑन रन होल्डिंग पॉइंट पे है। अब यहाँ से डिसाइड लेना है तो फिर अप्रोच को उसको टावर को कॉल जाएगा सर। टावर को कॉल जाएगा क्योंकि आपको एक प्रैक्टिस करनी है बिफोर फ्लाइंग आउट, ठीक है। यस सर। So this call will go to tower. मुंबई टावर अल्फा जूलियट इंडिया on 118.1 type of aircraft ATR from Mumbai to Jamshedpur. Current position taxi current position also No. runway. Sorry sir. No, ठीक ठीक है, go. Approaching Also ना तो reach पे holding point, ठीक है। Current position, reaching, approaching. current position reaching runway 27. Runway holding point runway 27. Holding point runway 27. क्या है? Correction. Current time now 0235. Request for ILS flying. ILS flying है या ILS approach है? ILS approach. Sorry sir. ILS approach. Regarding training flight. आराम से hold. Request for ILS approach practice, ठीक है, for the training purpose. Done? Yes sir. आपके सेंटेंस से ही मिक्स करके बोला, या फिर आपका बेटर रहता है इफ यू से would like to carry out ILS approach for training purpose, but आपने request बोला, no problem. Request for ILS approach practice for the training purpose before setting the course to destination. Before setting course to destination. Tango Alpha Juliet India. Very good. Go to the next question. Now this time Sierra Hotel Alpha, your turn. Try to answer question number 2.
Sierra Hotel Alpha. मैं आंसर दे दूं सर? Yes, go ahead. If you settle, go ahead. क्वेश्चन नंबर 2, मुंबई अप्रोच, विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट इंडिया। ATD बोल के। ओके। Call time departure 0850. Mumbai approach, Victor Tango Alpha Juliet India on 127.9er ATR. Mumbai to Jamshedpur. Position passing flight level 704, flight level 140, route Whiskey 10 North, radial 004, 30 nautical mile to Mumbai. Time now 09er. Outbound 30 nautical mile to या from Mumbai. Outbound, हाँ. Time now 0900. Estimate door tip 0910. Estimating Apano 0915. Request climb flight level 140. Where is top of climb? Where is ETA? And for 140, no restriction is there. कहीं तो किसी ने ऐसा बोला नहीं कि आपको इनिशियली 7000 फीट के लिए क्लियर किया तो आपको 14000 का लेवल चाहिए, नहीं, यू आर फ्री। डन। टॉप ऑफ क्लाइंब, ETA, these two लेकिन to be reported, क्वेश्चन right? से पता ही चल रहा है कि ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड है, तो जिसको जितना छोटा रख सके उतना टाइम बचाना पड़ेगा ना। ठीक है, ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड ही है, यस, ठीक है। बट ETA इंपॉर्टेंट, टॉप ऑफ क्लाइंब और ETA, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलो, ट्राई टू मेक अनदर वन। फिर से सेम, टॉप ऑफ क्लाइंब शैल बी देयर एंड ETA, दीज टू आर नेवर एंडिंग डेटा, ये रहना ही रहना चाहिए, ठीक है। सेम कॉल। Actual time departure 0850. Mumbai approach. Just a second. Go ahead. Yes, go ahead. Mumbai approach, Victor Tango Alpha Juliet India on 127.9er ATR. Mumbai to Jamshedpur. Position IFR और फ्लाइट रूट जुलू को कैसे रिपोर्ट करोगे ओवर दिस पॉइंट? तो VFR Mumbai to Bhopal, and then IFR Bhopal to Jamshedpur. गुड, ठीक है। Position passing flight level 704, flight level 140, route Whiskey 10 North, radial 004, 30 DME, 30 nautical mile outbound Mumbai. Time now 0900. Estimating road tip 0910. Apano
0915. estimating इंदौर ना ETA डायरेक्ट चलेगा, 2 बोल के आपने बोला ना शॉर्ट रखना है, 2 बोलना है MRP, डायरेक्ट पहुंचो ETA पे। हाँ ETA जमशेदपुर जमशेदपुर। 1030 हाँ टॉप ऑफ क्लाइंब top of climb 0930 training flight ठीक। Tango Alpha Juliet India. ये ट्रेनिंग फ्लाइट ना आपने लास्ट में बोला, दैट इज डन, ओके नो प्रॉब्लम, यहीं पे मेंशन कर देते हैं VFR अपने सेक्टर रिपोर्ट के बाद ट्रेनिंग फ्लाइट, राइट। चलो नो रिप्लाई, अज्यूम नो रिप्लाई, यस। Mumbai Control Victor Tango Alpha Juliet India. नो रिप्लाई, Rangawat approach Victor Tango Alpha Juliet India. नो रिप्लाई, Mumbai approach Victor Tango Alpha Juliet India. Transmitting blind on 127.9 ATR. Mumbai to Jamshedpur. Jamshedpur. Position passing flight level 70, port flight level 140, route whiskey 10 north, radial 004, 30 nautical mile outbound Mumbai. Time now 0901. 0901, ठीक है। Estimating dot tip 0910. Apano 0915. ETA Jamshedpur 1030. Top of climb $0.30. I say again, Mumbai approach Victor Tango Alpha Juliet India. Transmitting blind on 127.9 ATR. Mumbai to Jamshedpur. Position passing flight level 704, flight level 140, route whiskey 10 north, radial 004, 30 nautical mile outbound Mumbai. Time now 0902. Estimating dot tip 0910. Estimating Apano 0915. ETA Jamshedpur 1030. Top of climb 0930. Will transmit again at dot tip. ओवर, जब भी किसी स्टेशन का नाम लिया जाता है ना, उसको ओवर बोल के, ठीक है। Over dot tip. Victor Tango Alpha Juliet India. Very good. Go to the next question. Question number 3. Pan. Okay, very good. Nagpur Control. Tango Alpha Juliet India on 123.9 ATR. Mumbai to Jamshedpur. Position flight level 180,
route Alpha 7901, radial 0902, 15 TME, outbound, Bhopal. Time now 1000. Experiencing turbulence, Severe. severe turbulence. Request descent flight level 160. Wait. Hold. क्वेश्चन को थोड़ा और ध्यान से पढ़ो. क्या लिखा हुआ है? You decided to descend by 2000 feet. ATC channel is heavily occupied. तभी आपने पेन दिया कि एक तो चैनल बहुत बिजी चल रहा है, टर्बुलेंस सीवियर है. आगे लिखा हुआ है टू द क्लियरेंस ऑब्टेन्ड सो प्रोग्रेसिव कंप्लायंस, मतलब आप लीव कर जाओ. आपने पेन दिया है, कंसर्न सीरियस है, लेवल लूज करो डायरेक्ट. ठीक है. Leaving flight level 1804, flight level 160. Victor Tango, Alpha Juliet, India. Victor Tango Alpha Juliet India, Nagpur control. Report reaching flight level 160. सर 120 होगा ना फ्लाइट लेवल. He is leaving to 160. Currently he is at 18,000 feet, right? 2,000 feet Yes, lose sir. करेगा तो 16,000 पहुंचेगा, right? क्वेश्चन Will report. देखो. हाँ ठीक है, go ahead. Will report reaching flight level 160. Victor Tango, Alpha Juliet, India. ठीक है, very good. Okay. Alpha Bravo Charlie, doubt cleared? Yes, sir. Then go ahead with the next question. You only. Okay, sir. चार्ट कौन सा है सर ये? 4. No. चलो निकल गया मुझसे. ठीक है, 4. ओके सर. कोलकाता कंट्रोल. Victor Tango Alpha Juliet India on 132.45 from Mumbai to Kolkata, correction, Jamshedpur. Current position 120 nautical miles. Inbound Jamshedpur. Flight level 180. Time now 1015. On radial 255. Correction. On radial 274. Route Alpha 791. Would like to
descent ये तो सबको पता है कि आप डिसेंड करके भोपाल ही लैंड करोगे. फिर भी गो अहेड. वुड लाइक टू डिसेंड. would like to descend for landing at Jamshedpur. What is your top Request descent? top of descent 1020. Request instructions. Victor Tango Alpha Juliet India. 120 nautical mile, almost 2 किलोमीटर इन 1 माइल. 200 किलोमीटर दूर से ही आप लैंडिंग का डिमांड कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है तो ज्यादा टफ होता है, समझना. ठीक है, वुड लाइक टू डिसेंड के बदले आप सिंपल बोलो अपना टॉप ऑफ क्लाइंब, जो कि कम से कम 15 से 20 मिनट आगे रहेगा. क्यों? आप 120 नॉटिकल माइल दूर हो, समझ रहे हो? इतने में एक सेक्टर हो जाता है किसी भी एयरक्राफ्ट का. सो बी रियलिस्टिक. से अगेन आफ्टर दिस, आफ्टर योर पोजीशन रिपोर्ट. टॉप ऑफ क्लाइंब 1040. ETA भी आपने नहीं बोला, दैट इज मैंडेटरी कि आप जमशेदपुर पहुंचोगे तो कब पहुंचोगे. टॉप ऑफ क्लाइंब 1040. ठीक है, ETA जमशेदपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, 1055. Request instructions to land at जमशेदपुर. बस, ठीक है. Yes, sir. Hmm. तो इसमें ये सही नहीं है सर. Would like to descend. सेम चलेगा, चलेगा. नहीं. ठीक है, चलो उधर से इंस्ट्रक्शन आया. Clear for descent to flight level 70 at, correction, on or before 30 nautical mile inbound जमशेदपुर. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. Clear for descend to flight level 70 on or before 30 nautical mile inbound जमशेदपुर. Okay, sir. कोलकाता. Cleared for descent to flight level 70. Will descend before. Will descend before 30 nautical miles inbound Jamshedpur. Victor Tango Alpha Juliet India. Roger. Victor Tango Alpha Juliet India, Kolkata Tower. Roger your compliance. Contact next ATC for further landing instructions. I repeat, Roger your compliance. Contact next ATC for further landing instructions. Will contact. Will change over to.
contact Will change over to. Jamshed. Okay. Change over to Jamshedpur. बताओ. Will change over to. जमशेदपुर टावर. क्या जमशेदपुर? तो जमशेदपुर के पास सिर्फ टावर ही है तो टावर ही ना चेंज करोगे. Why are you struggling here? अप्रोच है कुछ जमशेदपुर के पास? नहीं. नहीं सर. देन सोचना क्या है फिर? सोचोगे तो सर, नंबर उसका कटेगा. वो ऑब्वियस है. उसका बताओ डिस्टेंस बताओ. सर 15 नॉटिकल माइल्स तक ही है ना सर रेंज उसका. तो क्या दिक्कत है? आपको कोलकाता अप्रोच ने कहा ना कि नेक्स्ट एटीसी को कांटेक्ट करो. आपने डिसाइड किया जमशेदपुर करना है तो बोलो. अगर आपको डाउट था तो पहले ही मत बोलो जमशेदपुर या क्या कुछ भी. ठीक है. विल चेंज ओवर टू Changing over- जमशेदपुर टावर. हाँ. Changing हिकअप्स over to लोगे वो Jamshed- ज्यादा. हाँ. ठीक है. हिकअप्स लोगे वो ज्यादा डेंजरस है. हो गया आप समझ हाँ, गए. सर मैं फिर वो आसपास में देख रहा था सर कोई और भी है क्या कंट्रोल. हाँ तो फिर पहले ही देख लेना था बोलने से पहले. ठीक है. ओके सर. ऐसा हाँ. हिकअप्स आप जितना लोगे उतना आप एग्जामिनर को इरिटेट करोगे. ट्रस्ट मी. और ये एक सर अच्छा लेकिन ये कोलकाता कंट्रोल हो जाएगा. कोलकाता कंट्रोल को गया. कोलकाता कंट्रोल नहीं चेंज किया. कॉन्टैक्ट नागपुर कंट्रोल को पहले कॉल करना था सर. मैं ये कह रहा हूँ. आते हैं सब पे आते हैं शुरू से ही. 120 नॉटिकल माइल टू किधर था अपना. 120 नॉटिकल माइल से शुरू करते हैं. शुरू से 120 नॉटिकल माइल इन बाउंडिंग जमशेदपुर. तो लुक एट द क्या कहते हैं चार्ट. 120 नॉटिकल माइल नहीं ये जाएगा कोलकाता कंट्रोल को. ठीक है. मीन्स आफ्टर अरीवो 114. अच्छा हाँ सॉरी. नागपुर कंट्रोल तो 20,000 या बनारस कंट्रोल को पहले जाएगा देन कोलकाता को. वाराणसी को जाता है. आते हैं सब पे आते हैं. चलो वन बाय वन वी लुक एट द चार्ट. ठीक है. विकेट टाइम अल्फा ब्रावो चार्ली नेवर माइंड. ठीक है. इफ फॉर्मेट इज गुड वेरी लेस चांस टू मार्क्स डिडक्शन. लेकिन एज आई एम सेइंग ये एक बहुत अच्छी आदत है कि आप आंसर करने से पहले 2 मिनट का ब्रेक ले लो. ठीक है. ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है कि आप आंसर करने से पहले 1 मिनट 2 मिनट तक होल्ड कर लो अपने आप को. जब आप ऐसा करोगे हो सकता है एग्जामिनर आपको पीछे से पोक करेगा कि जल्दी आंसर करो जल्दी आंसर करो. बिल्कुल घबराना नहीं. 1 से 2 मिनट हैंग टाइट. आराम से सांस लो लंबी. पूरा प्लान मन में सोच लो फिर आंसर करो. ठीक है. वो एक ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस है. अगर आप हिकअप्स लोगे अटकोगे रुक के बोलोगे वो ज्यादा डेंजरस है. ट्रस्ट में. पेनाल्टी इरिटेट होता है एग्जामिनर. वो इतना हैंडल नहीं करेगा. वो उतने में परेशान कर देगा आपको. ठीक है. ओके. नाउ as per the question you are 120 nautical mile inbound Jamshedpur. So ideally this could go to Varanasi control. ठीक है. वाराणसी कंट्रोल. ऐसे नागपुर कंट्रोल पहले है सर. नागपुर कंट्रोल का फ्लाइट लेवल 1 वाराणसी में तो सर 100 तक है ना. किधर जो वाराणसी कंट्रोल है सर 50 से लेकर 100 के बीच में कर सकते हैं ना सर. कहाँ लिखा देखा कहाँ देखा लिखा हुआ. ये सर ये जो फ्लाइट लेवल है अप टू 100 तक जा सकते हैं ना सर वाराणसी में. अरे इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. माइल तक है. अप टू 100 यहाँ तक के लिए देखो. इस वाले रेंज के लिए. इस वाले के लिए
यहाँ तक के लिए फ्लाइट लेवल 460। ठीक है, यस यस सी एफ ए पी ठीक है सर। सो आपको वाराणसी कंट्रोल फिर फर्दर चेंज करेगा टू कोलकाता कंट्रोल, राइट? सर पहले नागपुर एंड कंट्रोल करना है। इस क्वेश्चन में इसी में सर फोर्थ वाले में पहले नागपुर का जो टीएमए फ्लैट लेवल है 200 से 255। देन व्हाट इज योर करंट एल्टीट्यूड? करंट एल्टीट्यूड क्या है 160 सर, आपका? 160। 160 पे कैसे लगेगा नागपुर को? नागपुर को ही लगेगा सर, क्योंकि बनारस का तो 260 से 400 है ना फिर अपना। नहीं। हमारी सर हाँ हाँ, सर हमारी पोजीशन है वो जबलपुर के पीछे रहेगी क्या सर? नहीं, अरीवो के पीछे, अरीवो। यू आर उसकी 7901 अरीबो के पीछे। हाँ, अच्छा नागपुर, अच्छा समवन इज कंफ्यूजिंग फॉर वाराणसी है, आई थिंक ये हटकेशेरा 260 ऐसा लिखा हुआ है ना, दिस इज आल्सो इंडिकेटिंग एन अपर लिमिट, राइट? सर मेरा अपना फ्लैट लेवल 160 पे चल रहा है ना, और नागपुर ठीक का है। जो टीएमए स्टार्ट हो रहा है 200 से 255, तो देन सबसे पहले नागपुर को कॉल करेंगे। क्यों नागपुर तो 20 से स्टार्ट ही हो रहा है, 20 से, तब क्यों नागपुर को करेंगे? फिर बनारस को क्यों करेंगे सर, ऐसा क्या? हाँ, वाराणसी फ्री है अप टू 46,000 फीट, और अगर 260 करो तो अपर बार लगा हो रहता है, इट मींस दिस इज द लोअर लिमिट, और अगर 260 है मींस ग्राउंड टू 260 ऐसा रहता है ना? 260 से 400 है सर इसका। अच्छा, सॉरी, इसका है फ्लाइट लेवल 260, यानी 26,000 से 46,000 फीट के बीच में, राइट? इसलिए नागपुर को कॉल करेंगे। हाँ, सर नागपुर का भी तो 20,000 से 25,000 तक ही है। तब आएगा ना अपना नियर बाय, यही तो चार्ट का है लॉजिक, नियर बाय। ठीक है, आई एम मेकिंग कंक्लूजन, देखो अच्छे से सुनो, ठीक है? उसके बाद कोई डाउट रहेगा तो बताना। चलो, अपना पोजीशन है अरीवो से 20 नॉटिकल माइल, 114 है ना, अरीवो से 6 नॉटिकल माइल पीछे एग्जैक्टली, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है 120 नॉटिकल माइल टू जमशेदपुर। अब देखो, जब हम अरीवो से 120 नॉटिकल माइल दूर हैं तो हमारे पास जो एटीसी के ऑप्शंस हैं, एक तो नागपुर कंट्रोल है जिसका 20,000 से 25,000 फीट है, तो ये तो एक रिस्ट्रिक्शन में है कि हमारा 20,000 भी नहीं है। दूसरा आता है वाराणसी, बट वाराणसी दिया है 260 से 460, and our current altitude is 1600. So considering the fact of nearby ATC, first we will make a call to Nagpur control. Okay? First we will make a call to Nagpur control. And when Nagpur will say us to go to next ATC, तो हम अपने अपकमिंग रेंज के एटीसी को कॉल करेंगे जिसमें कोलकाता कंट्रोल को कॉल जाएगा। गॉट इट? यस सर। हाँ, तो आइडियली नागपुर को भी कॉल नहीं जाना चाहिए बिकॉज ऑफ द अल्टीट्यूड रूल, लेकिन किसी न किसी को तो करना पड़ेगा ना, तो नियर बाय एटीसी में किसको अप्रोप्रिएटली आप कॉल कर सकते हो उस केस में। ठीक है, नाउ ओके? यस सर। बाय द वे योर कॉल स्ट्रक्चर वाज गुड, एटीसी को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम था, दैट इज ओके, एंड हिकअप्स ट्राई टू अवॉइड। पहले ही थोड़ा सा टाइम लेके बोल लो, बोलते बोलते नहीं अटकना है, और खास करके ऐसे केस में कि जब आप बोल रहे हो जमशेदपुर, अगर आपके मुंह से जमशेदपुर निकला तो टावर, और एक ही है ना इसके पास ऑप्शन, क्लोज द कॉल एज सुन एज पॉसिबल। बार बार जमशेदपुर बोले तो वो और एग्जामिनर वहां पे इरिटेट होगा। जब जमशेदपुर के पास टावर छोड़ के कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तब क्यों टाइम ले रहे हो? सीधा सा ये सोचेगा। ठीक है? हाँ, so in RT
थोड़ा बहुत मिस्टेक चलता है, मैंने बोला ना थोड़ा बहुत मिस्टेक आपका नजरअंदाज कर दिया जाएगा अगर आपका आंसर स्मूथ है, ठीक है, आपका रिदम फ्लो ये सब स्मूथ है, लेकिन अगर वहीं पे आप अटकते हो तब तो आप उसको मौका दे रहे हो प्रॉब्लम्स ढूंढने का। चलो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Transceiver has transmitter and receiver. Transceiver has transmitter and receiver. Very Receiver. good. Next. Aircraft cleared for full Full scale landing. size full Full scale landing. full scale landing. Wind shear in takeoff path. Very good. Coordinates are given in latitude and longitude, not in distance. Very good. Aerodrome Jamshedpur is closed till further notice. जोरहाट। Very good. नहीं जोरहाट नहीं है ये, जमशेदपुर। जोरहाट है सर। अरे VEJS जूलियट सियरा। कहाँ सर? हाँ जमशेदपुर है। हाँ चलो। Localizer is left of runway center line. ठीक है। सर फुल स्टॉप होगा या फुल स्केल होगा? फुल स्केल लैंडिंग है। मैंने कहीं पे फुल स्टॉप लिखा था और आई थिंक कहीं पे मैंने पढ़ा भी था। अनदर टाइम आई वुड कम टू क्या कहते हैं आंसर, दैट इज अ फुल स्केल लैंडिंग। ठीक है, फुल स्केल लैंडिंग मींस यू कैन यूज द फुल लेंथ ऑफ रनवे। ठीक है। Yes, sir. Okay, so we'll move ahead to the rest topics, ठीक है, that I need to cover for today, and those rest topics are what we'll do when you have some contingency, when you are about to approach, ठीक है, when you are about to arrive on an airport. Yesterday we have seen arrival report, and today yesterday we have also seen a condition when you are in finals, when you are on finals. So we had told कि we have established hold on runway. Yes, go ahead. सर कल वाले टॉपिक थोड़े वापस से रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल वो बिल्कुल लास्ट बिल्कुल वाले आएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, so this is the condition when we do arrivals, ठीक है, when we have some of the approaching towards an airport, towards our destination airport. So like today's call, you have seen you are 120 nautical mile to Jamshedpur, request for landing, right? The same is known as arrival request call or descent request call. सेम ऐसा ही कंडीशन रहेगा। उसमें क्या करना रहेगा आपको, मेनली टॉप ऑफ डिसेंट रिपोर्ट करना रहेगा और अपना ETA बताइए कि आप उस पर्टिकुलर एयरफील्ड पे कितने बजे पहुंच जाओगे। क्लियर करो। सो जस्ट फॉर टुडे कॉल कि वी आर एट 120 nautical mile and we had asked for descent, that is the condition. ठीक है, so I am trying to make it again, just have a note. This call may go like this, ठीक है, Jamshedpur Tower, Victor Tango Alpha Juliet India on 122.5 ATR 72 Mumbai to Jamshedpur. Current position flight level 50.
Current position flight level 50, Alpha 79er1, 13 nautical mile inbound Jamshedpur, radial 09er2, time now 1015, established hold on runway, रनवे पे पकड़ बना लिया है, ठीक है, या फिर रनवे 27 इज इन साइट, सामने दिख रहा है, रिक्वेस्ट लैंडिंग क्लियरेंस, ठीक है, विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट इंडिया। सी, हमने पहले लैंडिंग रिक्वेस्ट मांगा, उसके बाद अगर उसने हमें लैंडिंग क्लियरेंस दिया तो कंडीशन यही हो सकता है कि रनवे हमारे सामने है, रनवे दिख रहा है, लैंडिंग क्लियरेंस दीजिए। इन द रिस्पॉन्स द एटीसी विल रिप्लाई लाइक क्लियर्ड फॉर लैंडिंग, ठीक है, क्लियर्ड फॉर लैंडिंग ऑन रनवे 27 जमशेदपुर टावर। In the response, you will simply say cleared for landing and you will land. Okay. Now, post landing, how you will make arrival report. ठीक है, post landing जब आप लैंड कर लेते हो तो भी आपको arrival report देना होता है. Similarly, we were used to give the departure report. उसी के जैसा arrival report. कैसे? Just have a look. Jamshedpur Tower, Victor Tango Alpha Juliet India on 122.5, ATR 72 Mumbai to Jamshedpur, landed, ठीक है, Jamshedpur on runway 27 at 1030. Request instructions, ठीक है, request instructions to vacate the runway. I suggest everyone कि ये जो मैं जब क्लास में बताता हूँ आंसर तो आप लोग अपने पेन एंड पेपर पे नोट डाउन करिए। आप लोग पेन एंड पेपर पे नोट डाउन नहीं करते हो तभी लास्ट में स्टेटमेंट भूलते हो, तभी आप लोगों से लैंग्वेज नहीं बन पाता है क्योंकि आप लोग नोट डाउन नहीं करते हो। दैट आई कैन फील, ठीक है। रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू वेकेट द रनवे एंड request instructions to vacate the runway and taxi in, important, ठीक है। either you can say taxi instructions also, लेकिन किसी किसी एग्जामिनर को ये जमता नहीं है टैक्सी, तो taxi in instructions to the apron या फिर to the stand, to the parking bay, like this. Victor Tango Alpha Juliet India. Clear? This is arrival report. सर एक बार जमशेदपुर, ये जो स्क्रीन है सर एक बार ऊपर की साइड करना, वो थोड़ा ऊपर लिखना रह गया सर, वो जो उसका रिप्लाई आ रहा था ना सर, रिक्वेस्ट लैंडिंग क्लियरेंस, cleared for landing, cleared for landing on runway 27. सर ये क्या? कितने फ्लाइट लेवल पे हम बोल सकते हैं कि रनवे इनसाइड 5000 पे 5000 सर हम इसमें नहीं, वीएफआर आप- जा रहे हैं ना। Zulu, it was flight rule Zulu, right? अच्छा ज़ुलू था, ओके Hmm. ठीक है सर, वो मुझे पता नहीं था फ्लाइट रूल से, मैं थोड़ा लेट में ज्वाइन किया ना इसलिए। कोई ना। तो देखो, अगर आप VFR जा रहे हो तो रनवे इनसाइड, और IFR है तो एस्टेब्लिश्ड होल्ड ऑन रनवे, ठीक है। अच्छा, समन है राज कि कितने लेवल पे हम ये बोल सकते हैं कि रनवे इज इनसाइड? ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कहीं भी, होगा भी तो वो कोर पायलट के प्रैक्टिस बुक्स के होंगे, बट ऐसा कोई अल्टीट्यूड या ये सब सजेस्टिव नहीं है फिलहाल के लिए। आप 5000 ऑनवर्ड्स रनवे इनसाइड ये सब बोलना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। डन। सो दिस इज द कंडीशन जब आप लैंड करने वाले हो किसी न किसी एयरफील्ड।
अब क्या हो सकता है, अब आपको प्रॉब्लम आ सकती है रिगार्डिंग एनी लैंडिंग इश्यूज कि आप लैंड करने वाले हो, विजिबिलिटी कम बताया गया, या फिर बोला गया जब आपने लैंडिंग क्लियरेंस मांगा टू द जमशेदपुर ओनली विल गो टू द कंडीशन, ठीक है, आपने जमशेदपुर को बोला कि हमने रनवे के साथ अपना एस्टेब्लिशमेंट फिक्स कर लिया है, ठीक है, और अब हमको लैंड करने का परमिशन दीजिए। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है, उसको बोला जाता है इनिशियल अप्रोच फिक्स्ड, इनिशियल अप्रोच फिक्स्ड। जब आपके आईएलएस के सिग्नल कैप्चर हो जाते हैं, मींस ग्लाइड स्लोप, मार्कर बीकन एंड लोकलाइजर, जब ये तीनों आपके एयरक्राफ्ट में प्रॉपर रिसीव होने लगते हैं, इन तीनों में सफल मूवमेंट इंडिकेट होने लगता है, तो आप अप्रोच फिक्स कर लेते हो। सो यू कैन ऑल्सो से अप्रोच फिक्स्ड विद द रनवे 27, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड होल्ड के बदले अप्रोच फिक्स्ड विद द रनवे 27 या फिर रनवे इज इन साइट। ये सारे लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो व्हेन यू आर ऑन अप्रोच फेज। तो आपने लैंडिंग क्लियरेंस मांगा, सपोज इसका अपोजिट रिप्लाई आया, कैसा, नेगेटिव, लैंडिंग ऑन रनवे 27 नॉट अप्रूव्ड, रनवे सरफेस डैम, try to land again in 15 minutes, ठीक है, 15 मिनट बाद फिर से लैंड करो। नेगेटिव, लैंडिंग ऑन रनवे 27 नॉट अप्रूव्ड, रनवे सरफेस डैम, ट्राई टू लैंड अगेन इन 15 मिनट्स। तो आप इसका रीडबैक दोगे क्या, लैंडिंग नॉट अप्रूव्ड, विल ट्राई टू लैंड अगेन, ठीक है, विल ट्राई टू लैंड अगेन इन 15 मिनट्स, 15 मिनट बाद फिर से लैंड करेंगे, विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट इंडिया। क्लियर। अब देखो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है एक्सटेंडिंग, क्या, एक्सटेंडिंग। हमने एयर ट्रैफिक सर्किट में पढ़ा था बेस लेग, डाउन विंड लेग, टेक ऑफ लेग। तो एटीसी में टेल यू एक्सटेंड योर बेस लेग, इसका क्या मतलब हो गया भैया, एक्सटेंड योर बेस लेग, इसका मतलब हुआ कि आप जब बेस लेग एरिया में फ्लाई कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम पास करो किसी खास डिस्टेंस पे। एक्सटेंड योर डाउन विंड लेग मींस जब आप डाउन विंड लेग पे फ्लाई कर रहे हो तो थोड़े से किसी खास एरिया में जाके एक सर्किट फ्लाइट मारो, गोल चक्कर मारते रहो और थोड़ा सा टाइम पास करो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सटेंड, बढ़ाओ अपने फ्लाइट लेंथ को। कहां पे, बेस लेग एरिया में। कहां पे, डाउन लेग एरिया में। तो अब हमको क्या मिला कि रनवे का सरफेस डैम्प है, भीगा हुआ है, 15 मिनट बाद हमको लैंडिंग का परमिशन मिलेगा। तो साथ ही साथ इसने हमको कह दिया एक्सटेंड योर डाउन विंड लेग, आप अपने डाउन विंड लेग एरिया को थोड़ा सा एक्सटेंड करिए और ज्यादा टाइम पास करिए। किधर, डाउन विंड लेग एरिया में। तो उसका रिस्पॉन्स कैसे जाएगा, सेम, लैंडिंग नॉट अप्रूव्ड, विल ट्राई टू लैंड अगेन इन 15 मिनट्स, ठीक है। एक्सटेंडिंग डाउन विंड लेग, डाउन विंड लेग को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, एट 10 नॉटिकल माइल राइट ऑफ एयर ट्रैफिक सर्किट, विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट इंडिया। यानी हमारा ये जो डाउन विंड लेग था, ठीक है, ये रहा ना हमारा डाउन विंड लेग, तो हम अपना डाउन विंड लेग राइट साइड में एक्सटेंड कर रहे हैं एट 10 नॉटिकल माइल। यानी ये 15 मिनट का टाइम हम यहाँ पे बिताएंगे। तो कोई दूसरा एयरक्राफ्ट को आप इधर परमिट मत कर दें, नहीं तो कोलिजन हो जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट। If someone will ask you extend your base leg, extend your downwind leg,
तो आपने बेस लेग या एक्सटेंड लेग से किसी खास एरिया में, किसी खास डायरेक्शन में सर्किट फ्लाइट, उसको बोलते हैं सर्किट फ्लाइट, अ काइंड ऑफ सेक्टर रिक्वेस्ट, ठीक है, अ काइंड ऑफ सेक्टर, एक सर्किट फ्लाइट करते हैं टू वेट फॉर द लैंडिंग क्लियरेंस। क्लियर? यस सर। तो इसको बोलते हैं एक्सटेंड योर बेस लेग, अपना बेस लेग एक्सटेंड करो, ज्यादा टाइम कंज्यूम करो, किधर? बेस लेग के एरिया में। नाउ साइलेंस विल बी एक्सेप्टेड एज गो अहेड, ठीक है? तो डाउट है तो पूछ लेना, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, नेवर अ प्रॉब्लम। नाउ आपने लैंडिंग क्लियरेंस मांगा, ठीक है, एक कंडीशन होगी एक्सटेंड योर बेस लेग का। अनदर कंडीशन, आपने लैंडिंग क्लियरेंस मांगा, एटीसी ने बोला विजिबिलिटी ऑन रनवे, या फिर वो बोलेगा रनवे विजुअल रेंज जमशेदपुर इज 100 मीटर्स, जमशेदपुर टार, ठीक है। आपने लैंडिंग क्लियरेंस मांगा, उसने बोल दिया कि आईएलएस कैटेगरी 100 मीटर किसका आता है? हु इज गोइंग टू से? 3 का है, राइट? तो आपको विजिबिलिटी बता दिया उसने 100 मीटर्स, यानी रनवे विजिबिलिटी कम है। बताओ क्या करोगे? तो जो आपका एनी अदर इंफॉर्मेशन वाला सेक्शन है इन द फ्लाइट प्लान, वहां पे अगर लिखा हुआ है आईएलएस कैटेगरी 3, ठीक है, तब तो अगर वहां पे लिखा हुआ आईएलएस कैटेगरी 3, तब तो आप इस क्वेश्चन को बाईपास कर जाओगे। कैसे? यू कैन सिंपली से हियर, ठीक है, यू कैन सिंपली से हियर एयरक्राफ्ट इज इक्विप्ड विथ, ठीक है, एयरक्राफ्ट इज इक्विप्ड विथ आईएलएस कैटेगरी 3 will proceed for landing. Clear? Victor Tango Alpha Juliet India. But any other information section में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो 100 मीटर तो काफी कम विजिबिलिटी हो गया आपके लिए। अब क्या करोगे? बस करते हैं जुगाड़। अब देखो यहीं पे आता है एक, हाँ बोलो बोलो बोलो। भाई कैसे हो? Will wait for improvement, ठीक है, will wait चार्ज for, अच्छा एक जस्ट a second, एक कॉल पिक करके मैं आता हूँ वापस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो हेमंत, आवाज आ रही है क्या? सर को कॉल आया है अभी, सर कॉल आया तो बोले हैं रुकने के लिए।
Interruptions in between. Yes, somewhere was asking something. Nine. Okay. So let me know my readability. How am I audible to everyone? Yes, sir. Radio 5. अच्छा ठीक है फिर. So I was saying कि ATC ने बोल दिया विजिबिलिटी कम है. So 100 मीटर किसका कैटेगरी आता है? LS कैटेगरी 3. राइट. नाउ ये एक बड़ा पैरामीटर खुद से ध्यान से देख लेना क्या है नहीं है. बट अब देखो क्या है कि सपोज इस विजिबिलिटी क्लियरेंस के लिए आपका एयरक्राफ्ट कैपेबल नहीं है, तो आप कैसे रिपोर्ट करोगे टू द टावर? यू कैन सिंपली से विल वेट फॉर द इम्प्रूवमेंट. किसमें? विजिबिलिटी में. एंड ट्राई टू लैंड अगेन. एक बार फिर से मैं लैंड करने का कोशिश करूंगा. ठीक है. विल वेट फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड ट्राई टू लैंड अगेन. अगला इंफॉर्मेशन अब क्या रहेगा? एक कंडीशन हमने कल जाते जाते बोला था, मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर एंड गो अराउंड. इसमें क्या होता है? वेरी सिंपल. आप क्या कहते हैं, एक एयरपोर्ट पे लैंड करना चाहते हो, राइट? तो एक अल्टीट्यूड होता है, डिसीजन अल्टीट्यूड और डिसीजन हाइट उसको बोलते हैं. ओवर दिस यू शुड डिसाइड कि वेदर यू आर गोइंग टू लैंड और नॉट. अगर आपने यहाँ तक में डिसीजन अल्टीट्यूड में डिसीजन नहीं बनाया कि लैंड करना है कि नहीं करना है, so it may be a problem for your aircraft. Your aircraft performance may leave your support. वो दम तोड़ देगा अपना. तो लैंड नहीं करना है, रास्ते से गो अराउंड के लिए आप प्रोसीड कर जाओ. गो अराउंड मीन्स एक बार फिर से वापस एयर ट्रैफिक सर्किट ज्वाइन करो, डाउनविंड फॉलो करो, बेस लेग फॉलो करो और वापस रनवे पे अपना अप्रोच फिक्स करो. सो दिस इज नोन एज मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर एंड गो अराउंड. आपने अपना अप्रोच मिस किया तो दैट इज नोन एज मिस्ड अप्रोच. अब प्रोसीजर क्या है? तो मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर कहता है कि जिस हाइट से आपने अपना एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया तो एयर ट्रैफिक सर्किट को ज्वाइन करो. ठीक है. दैट इज अंडर प्रोसीजर. वापस एयर ट्रैफिक सर्किट ज्वाइन करोगे. गो अराउंड इसीलिए क्योंकि आप रनवे के आसपास एक अराउंड चक्कर मार रहे हो इन द एयर. तो हम लोग इन दोनों टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं इन द कम्युनिकेशन. हाउ? अब देखो, उसने कह दिया रनवे विजिबिलिटी 100 मीटर्स या फिर रनवे विजुअल रेंज 100 मीटर्स. तो हम लोग क्या बोलेंगे? विल नॉट लैंड. क्या हम लोग लैंड नहीं करेंगे. तो क्या करोगे भैया? विल वेट फॉर द इम्प्रूवमेंट. हम इम्प्रूवमेंट का वेट करेंगे, विजिबिलिटी इंप्रूव हो. डन. इनिशिएटिंग, शुरुआत कर रहा हूं. इनिशिएटिंग मिस्ड अप्रोच एंड गो अराउंड प्रोसीजर. अब देखो, कई बार आपको लिखा हुआ मिल सकता है मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर एंड गो अराउंड. कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर एंड गो अराउंड प्रोसीजर. कई बार सिर्फ मिक्स्ड अप्रोच एंड गो अराउंड लिखा हुआ मिलेगा. कुछ भी बोलो, डजंट इवन मैटर. ठीक है. सब कुछ एक्सेप्टेबल है. तो यू कैन सिंपली से इनिशिएटिंग मिस्ड अप्रोच एंड गो अराउंड प्रोसीजर. मैप एंड गैप, जो भी आपको लिखने का मन हो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. Initiating missed approach and go around procedure. Done. Will try to land again. Will try to land again. Victor Tango Alpha Juliet India. ठीक है. तो उसने कहा कि विजिबिलिटी कम है. Will wait for the improvement and initiating missed approach procedure and go around. Will try to land again. ठीक है. Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट. अब आप क्या है कंडीशन कि आप फाइनल्स पे पहुंच चुके हो. फाइनल्स हमने बताया था एयर ट्रैफिक सर्किट में, ये अगर रनवे है तो ये वाला पोर्शन है फाइनल्स का. ये जो डीप ब्राउन कर रहा हूं, दिस इज नोन एज फाइनल्स. जनरली फाइनल्स को भी दो पार्ट में स्प्लिट किया जाता है. 8 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस को फाइनल्स बोला जाता है. हेयर फर्स्ट 4 नॉटिकल माइल को बोला जाता है. क्या बोला जाता है? हु इज गोइंग टू से लॉन्ग फाइनल शॉर्ट फाइनल क्या है? एनीवन?
लॉन्ग फाइनल। शॉर्ट फाइनल सर। हाँ, लॉन्ग फाइनल और शॉर्ट फाइनल दो कंडीशन आते हैं, राइट। तो दिस 8 नॉटिकल माइल एरिया फर्स्ट 4 नॉटिकल माइल को बोला जाता है लॉन्ग फाइनल और सेकंड को बोला जाता है शॉर्ट फाइनल। So you can either simply say finals, or if you want to specific, you can say long final or short final. तो आप फाइनल्स पे हो, अब क्या होता है, जब आप फाइनल्स पे हो तब अगर रनवे किसी भी रीजन से ऑब्स्ट्रक्टेड है, किसी भी तरह का रनवे प्रॉब्लम आया, इट विल गो टू अ मे डे। ठीक है। नाउ द कंडीशन इज ड्यूरिंग लैंडिंग यू आर ऑन फाइनल्स। ठीक है, यू आर ऑन फाइनल्स, लोकलाइजर सिग्नल लॉस्ट। ठीक है, लोकलाइजर सिग्नल लॉस्ट या फिर लैंडिंग गियर इंडिकेशन नोट केम, तो दोनों कंडीशन को देखेंगे। ठीक है, लोकलाइजर सिग्नल लॉस्ट, लैंडिंग गियर इंडिकेशन नोट केम, एक तो ये रहा दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन हम लोग इसी में देखेंगे, क्या देख लें। हाँ, 1 एयरक्राफ्ट इज ऑन रनवे। ठीक है, 3 कंडीशन देखेंगे। सबसे पहला लोकलाइजर सिग्नल लॉस्ट। अब देखो, very simple, this will call go to tower because you are on finals. So Jamshedpur Tower, Victor Tango Alpha Juliet India on 122 decimal liner, जो भी है frequency, I am saying it hypothetically, on 122 decimal liner, current position on finals, runway 27। ठीक है, localizer signal lost, करेक्शन, मैंने मेडे बोलना शुरू भूल गया शुरू में, मेडे मेडे मेडे, जमशेदपुर टावर, विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट इंडिया ऑन 122 decimal liner, करंट पोजीशन ऑन फाइनल्स रनवे 27, लोकलाइजर सिग्नल लॉस्ट। ठीक है, इनिशिएटिंग मिस्ड अप्रोच एंड गो अराउंड प्रोसीजर, विल ट्राई टू मेक visual approach। ठीक है, initiating missed approach and go around procedure, will try to make visual approach, Victor Tango Alpha Juliet India, या फिर इसी का अल्टरनेटिव, missed approach and go around, will try to land again। ठीक है, by visual approach procedure, that's all। Victor Tango Alpha Juliet India। कुल मिला के मेन चीज क्या है, मिस्ड अप्रोच एंड गो अराउंड। अब हम लैंड नहीं करेंगे, हम एक गो राउंड मार रहे हैं। ठीक है, अब हम विजुअली लैंड करेंगे क्योंकि इंस्ट्रूमेंटली तो हम लोग प्रॉब्लम में आ गए। जब आप बेस लेग पे रहोगे या डाउन विंड लेग पे रहोगे तो उस टाइम पे आप सिंपली चेंज ओवर कर लो, क्योंकि आपको तुरंत इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, चेंजिंग ओवर टू विजुअल अप्रोच, जब आप डाउन विंड लेग पे हो लेकिन आप फाइनल्स पे हो तो सबसे पहले वहां पे स्विचिंग ओवर चेंजिंग ओवर अलाउड नहीं है। फाइनल्स पे हो, मेडे कॉल जाएगा, गो अराउंड करो, और जब आप गो अराउंड करते रहोगे तब आपके पास इनफ टाइम है, फिर आप चेंज ओवर करते रहो रास्ते में। क्लियर। तो फाइनल्स पे कुछ भी आए मेडे। ठीक है, वहां पे इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल से वीएफआर फ्लाइट रूल चेंज करने का कोशिश नहीं करना है। ठीक है, लैंडिंग एंड टेक ऑफ, दीज टू आर द क्रिटिकल फेजेस, किसी भी टाइप का रोल चेंज परमिसेबल नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयरक्राफ्ट इज ऑन रनवे, मेडे मेडे मेडे, जमशेदपुर टावर, विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट इंडिया ऑन 122 decimal liner, ऑन फाइनल्स रनवे 27। क्या हुआ, साइटेड एयरक्राफ्ट obstructed runway, initiating missed approach and go around procedure, will try to
land again, please vacate the runway, ठीक है, या फिर vacate the runway, या फिर clear the runway, ठीक है, clear the runway, या फिर अगेंस्ट में और भी बोलो, clear the obstructions over runway, ठीक है। तो ये सारे लाइंस आप बोल सकते हो कि प्लीज वेकेट द रनवे, रनवे खाली कर दीजिए, या फिर वेकेट द रनवे, नो सैल्यूटेशन, नो प्लीज, नथिंग। अगला क्लियर द रनवे, रनवे को खाली कर दीजिए, या फिर हाँ हाँ ये साइटेड एयरक्राफ्ट के आगे क्या है सर? साइटेड एयरक्राफ्ट, अच्छा साइटेड वन एयरक्राफ्ट ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्टेड द रनवे, जाम करके रखा है। अच्छा 3D Okay, हैंडराइटिंग, चलो this is that is why because I wish you to do more focus on the listening, ठीक है, तभी मैं राइटिंग थोड़ा सा ऐसा कर्सिव बनाता हूँ, कोई बात। Sighted one aircraft या sighted aircraft obstructed the runway, initiating missed approach and go around procedure, will try to land again, either please vacate the runway or simply vacate the runway, clear the runway or clear the obstructions over runway, runway को खाली करिए, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस बोले जाते हैं जब आप मिस्ड अप्रोच करना चाहते हो क्योंकि रनवे खाली नहीं है। अभी क्या अगला कंडीशन था, लैंडिंग गियर इंडिकेशन, हाँ हाँ बोलो सर एक बार वो जो सेकंड कंडीशन थी ना कि हम डाउनलिंक में जा रहे हैं, तो सर एक बार वो बता दीजिए सेकंड वाली क्या है, डाउनविंड, कंडीशन थी सर, जिसमें सर डाउनविंड हम वाला, चेंज ओवर कर रहे थे बोल। डन डन डन, ओके चलो। अभी क्या है, यू आर ऑन डाउनविंड लेग, ये है यू आर ऑन डाउनविंड लेग, ठीक है, एंड इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS सिग्नल, ठीक है, ILS सिग्नल लॉस्ट, या फिर यू आर इन बेस लेग, यू आर ऑन बेस लेग, ILS सिग्नल लॉस्ट। अब इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, नाउ हैव अ लुक। जमशेदपुर टावर, विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट इंडिया ऑन 122 डेसिमल लाइनर, ठीक है, ATR 72, यहाँ पे हमारे पास टाइम है तो पूरा रामायण सुनाना है। ATR 72 मुंबई टू जमशेदपुर, current position on base leg runway 27, ठीक है, ILS signal lost, changing over to VFR, will try to make visual approach over Jamshedpur, request permission, Victor Tango Alpha Juliet India, डन। हमने कहा कि अभी हम बेस लेग पर हैं, ILS सिग्नल लॉस्ट, कोई बात नहीं, चेंजिंग ओवर टू VFR, विल ट्राई टू मेक विजुअल अप्रोच ओवर जमशेदपुर, ठीक है, रिक्वेस्ट परमिशन, क्लियर डन। नाउ लुक एट द कंडीशन नाउ। अभी क्या है, यू आर ऑन फाइनल्स, लैंडिंग इंडिकेशन नोट केम या फिर फ्लैप स्टक या कोई भी आपके एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ गया एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस में, फंक्शंस में, हाउ दैट विल गो, जस्ट हैव अ लुक। मेडे मेडे मेडे, विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट इंडिया, ठीक है, on 122 days, correction, Mayday, Jamshedpur Tower, Victor Tango Alpha Juliet India on 122 decimal liner, ठीक है,
ऑन फाइनल्स ऑफ, आप फाइनल को ऐसे भी रिपोर्ट कर सकते हो, ऑन फाइनल्स ऑफ रनवे 27 जमशेदपुर। ठीक है, क्या हो गया? लैंडिंग गियर इंडिकेशन नोट केम इन कॉकपिट। क्या होता है लैंडिंग गियर का इंडिकेशन, कोई बताएगा? सर वो ग्रीन सर, ग्रीन कलर का जो होता है ना, वो डाउन की तरफ बना रहता है ट्रायंगल। ग्रीन। हाँ, तो जब आपका लैंडिंग गियर एक्सटेंडेड एंड लॉक, ठीक है, जब डाउन एंड लॉक हो जाता है तो आपके एयरक्राफ्ट में 3 ग्रीन्स आते हैं। ठीक है, तो लैंडिंग गियर का इंडिकेशन आपको नहीं मिला, मींस यू आर नॉट श्योर अबाउट योर लैंडिंग गियर पोजीशन। इसके क्या करोगे आप? लो पास। ठीक है, लैंडिंग गियर इंडिकेशन नोट केम इन कॉकपिट will carry out a low pass flying, ठीक है, low pass flying over runway 27 at 500 feet. Have a look out and confirm, CNFM short form चलेगा, confirm landing gear position. विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट इंडिया। ठीक है, अब सडनली ध्यान आया कि यहाँ पे मिस्ड अप्रोच भी तो बोल सकते हैं। यस, इनिशिएटिंग मिस्ड अप्रोच एंड गो अराउंड प्रोसीजर, विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट इंडिया। ठीक है, तो हमने बोला लैंडिंग इन, हाँ हाँ बोलो बोलो। लुकआउट के बाद सर, लुकआउट एंड ऊपर। कंफर्म, ओके सर। कंफर्म लैंडिंग गियर पोजीशन। सर यहाँ ठीक है, पे लो पास फ्लाइंग हो रहा है, उसके बावजूद भी हम मिस अप्रोच प्रोसीजर कर सकते हैं? आप जो लो पास डिसाइड किया, आपको डिसेंड करना था, आपने डिसेंड नहीं किया, इसी को तो बोल दिया मिस्ड अप्रोच। तो आपने मिस्ड अप्रोच शुरू किया, और मिस्ड अप्रोच के बाद दूसरा कंसर्न ये है कि आप 500 फीट से पास करोगे। मिस्ड अप्रोच में आप किसी भी एल्टीट्यूड से पास कर सकते हो ओवर द रनवे, बट यहाँ पे आप एक मेंटेन करोगे 500 फीट, ताकि वो आपका लैंडिंग गियर पोजीशन में इंडिकेट कर सके। ठीक है, सो दीज टू एक्शंस इज बीइंग परफॉर्म साइमल्टेनियसली। ठीक है सर सर ये जो लो पास फ्लाइंग, इसके बाद क्या लिखा है सर? रनवे उसे? हाँ, लो पास फ्लाइंग ऑन रनवे 27। ओके। ठीक है, will carry out a low pass flying on runway 27। हम जहां भी लो पास फ्लाइंग करेंगे उस एरिया को इंडिकेट करेंगे ना, कि किसके ऊपर से लो पास फ्लाइंग करना है, टर्मिनल बिल्डिंग के ऊपर से, रनवे के ऊपर से, टैक्सी वे के ऊपर से, किधर, तो इंडिकेट करोगे, वहां वो स्पेशली देखेगा। डन। सो विल कैरी आउट अ लो पास फ्लाइंग ओवर रनवे 27 या फिर ऑन रनवे 27 at 500 feet. Have a look out and confirm landing gear position, Victor Tango Alpha Juliet India. ठीक है, इनिशिएटिंग मिस्ड अप्रोच एंड गो अराउंड प्रोसीजर। ठीक है, डन सर। चलो, अभी क्या है कि एक कंडीशन आपको ऐसा किसी क्वेश्चन में मिलेगा, लिखा रहता है कि यू आर ऑन फाइनल्स। ठीक है, वन हेलीकॉप्टर, एक किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ऐसा देखेगा मिलेगा, वन हेलीकॉप्टर लैंडेड अहेड ऑफ यू। ठीक है, आपको दिया गया था लैंडिंग क्लियरेंस, बट एक हेलीकॉप्टर आपके सामने आके सडनली लैंड कर गया। तो इस केस में थोड़ा सा नाराजगी भी दिखानी है, किसके सामने? टावर के सामने। हाउ? जस्ट हैव अ लुक। मेडे जाएगा सबसे पहले, क्योंकि आपका लैंडिंग ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है। मेडे मेडे मेडे, जमशेदपुर टावर, विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट इंडिया, पोजीशन ऑन फाइनल्स ऑफ रनवे 27। ठीक है, इनिशिएटिंग मिस्ड अप्रोच एंड गो अराउंड प्रोसीजर। You have cleared us for landing
one helicopter landed ahead of us. There could be an accident. Request full investigation. Victor Tango Alpha Juliet India. करता हूँ एक्सप्लेन. हमने बोला कि करेंट पोजीशन ऑन फाइनल्स ऑफ रनवे 27 इनिशिएटिंग मिस्ड अप्रोच एंड गो रन प्रोसीजर. मैं एक राउंड ऑफ मार रहा हूँ. क्यों? You have cleared us for landing, but one helicopter landed ahead of us. There could be an accident. Request full investigation. Victor Tango Alpha Juliet India. Clear? क्लियर. Now, अभी क्या है? हमारा नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया. समथिंग इज नोन एज रेडार वेक्टरिंग. ठीक है, रेडार वेक्टरिंग. वेक्टर क्वांटिटी हमने पढ़ा था क्लास 12th में. मींस इफ सम मैग्नीट्यूड इज कमिंग अलोंग विद सम डायरेक्शन, देन दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी. हियर वेक्टरिंग मींस होता है इन एविएशन, वेक्टरिंग मींस योर मूवमेंट अंडर द कमांड ऑफ, ठीक है, अंडर द कमांड ऑफ एयर ट्रैफिक सर्विसेज. एयर ट्रैफिक सर्विसेज आपको जैसा जैसा बोलता है आप वैसा ऐसा करोगे, तो दैट इज नोन एज वेक्टरिंग. अभी क्या है? यू रीच्ड, ठीक है, कंडीशन देखो. यू रीच्ड जमशेदपुर at 50 nautical mile to Jamshedpur. Your navigation system fails. अब देखो क्या हो गया. आप जमशेदपुर पहुंच रहे थे. वेक्टरिंग क्या होता है एक बार फिर से बता देंगे? मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट. जनरली आपके एयरक्राफ्ट का मूवमेंट जो होता है दैट इज द अंडर द कमांड ऑफ पायलट. पायलट जैसा जैसा चाहेगा वैसा वैसा मूव करवाएगा, बिकॉज दे नो हाउ टू नेविगेट. बट इफ दिस मूवमेंट इज अंडर द कमांड ऑफ एयर ट्रैफिक सर्विसेज, एटीसी जैसा जैसा बोला आप वैसा वैसा मूव करोगे, देन दैट इज नोन एज वेक्टरिंग. ठीक है. सो विद दिस क्वेश्चन यू विल कम टू नो इन फुल डिटेल. वेट फॉर द कॉल. नाउ क्वेश्चन कंडीशन आया, यू हैव रीच्ड जमशेदपुर एट 50 nautical mile टू जमशेदपुर. योर नेविगेशन सिस्टम फेल. आप जमशेदपुर पहुंच रहे थे, 50 nautical mile दूर आपका नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया, यानी आप अपने एयरक्राफ्ट को लोकेट ही नहीं कर पा रहे हो इन द एयर. तो हाउ दैट कैन गो? जस्ट हैव अ लुक. पैन 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 जमशेदपुर टावर, या फिर अगर क्या कहते हैं जमशेदपुर टावर का रेंज नहीं है तो जो भी करेक्ट एटीसी है उसको कॉल कर लेना. जमशेदपुर अप्रोच, कोलकाता कंट्रोल, जो भी करेक्ट एटीसी है. डन. जमशेदपुर टावर, विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट इंडिया, एटीआर मुंबई टू जमशेदपुर. ठीक है. अब देखो इधर, अनेबल टू डिटरमाइन. ठीक है, अनेबल टू डिटरमाइन करेंट पोजीशन. इसको अच्छे से समझो. समथिंग इज नोन एज एयरक्राफ्ट लॉस्ट या फिर अनेबल टू नेविगेट योर लोकेशन. तो इसका क्या मतलब होता है कि आपका एयरक्राफ्ट लॉस्ट हो गया है. हमने कंडीशन देखा था, आप लोगों ने भी नोट में अगर देखा होगा तो मिला होगा. एयरक्राफ्ट लॉस्ट, इसका मतलब होता है कि आप अपना पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो. द रीजन में भी वेरियस. तो हम ये नहीं बोलेंगे एयरक्राफ्ट लॉस्ट या फिर एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम फेल्स सडनली. वो सब कंडीशन बाद में बताएंगे. पहले अपना स्टैंडर्ड फ्रेज है अनेबल टू डिटरमाइन करेंट पोजीशन. ठीक है. नेविगेशन सिस्टम फेल्स. और हमने क्या पढ़ा था पोजीशन रिपोर्टिंग में
कि अगर हमारा एयरक्राफ्ट अनेबल टू डिटरमाइन करंट पोजीशन है तो लास्ट नोन पोजीशन हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। अनेबल टू डिटरमाइन करंट पोजीशन, नेविगेशन सिस्टम फेल, लास्ट नोन पोजीशन 50 नॉटिकल माइल इनबाउंड जमशेदपुर, रिक्वेस्ट रेडार वेक्टरिंग, मींस आप अपने रडार स्क्रीन पे हमारा एयरक्राफ्ट देखिए और बताइए कि कैसे हम लैंड करें जमशेदपुर पे। रिक्वेस्ट रडार वेक्टरिंग फॉर द लैंडिंग टू जमशेदपुर, या फिर टू लैंड एट जमशेदपुर, फॉर द लैंडिंग टू जमशेदपुर, या फिर टू लैंड एट जमशेदपुर। अब देखो इसके रिस्पॉन्स में एटीसी क्या बोलेगा। हमने सबसे पहले क्या रिक्वेस्ट दिया, अनेबल टू डिटरमाइन करंट पोजीशन, नेविगेशन सिस्टम फेल्स, लास्ट नोन पोजीशन वाज 50 नॉटिकल माइल इनबाउंड जमशेदपुर, रिक्वेस्ट radar vectoring to land at जमशेदपुर, विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट इंडिया। ना radar vectoring होता क्या है, आपके रडार स्क्रीन पे, ठीक है, सॉरी एटीसी के रडार स्क्रीन पे आपके एयरक्राफ्ट के करंट पोजीशन को एटीसी लोकेट करेगा, ठीक है। सबसे पहले वो लोकेट करेगा। आपने बोला ना कि लास्ट नोन पोजीशन 50 नॉटिकल माइल, तो अपने रडार स्क्रीन पे देखेगा, और आपने फ्लाइट रडार पे देखा होता है, फ्लाइट रडार पे कितना सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहता है, कौन सा एयरक्राफ्ट है, पूरा सेक्टर रहता है फ्लाइट रडार पे, कहां से कहां आ रहा है, किस एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा है, कौन सा एयरक्राफ्ट टाइप है। तो सपोज उसने आपको यहाँ पे लोकेट कर लिया, फिर भी वो एक रैंडम कंडीशन देके आपको बायां दायां मूव करवाएगा, ताकि वो डबल श्योर हो सके कि दिस एयरक्राफ्ट इज यू ओनली। नहीं तो पता चले किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को वो ऑब्जर्व कर रहा है, आप कहीं और बायां दायां मार रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के वो आपके एयरक्राफ्ट को लोकेट करवाएगा। पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन देगा, चेक इंस्ट्रक्शंस, कि बायां टर्न करके बताइए, दायां टर्न करके बताइए। आप जैसे बायां दायां टर्न करोगे वो रडार पे लोकेट करेगा। अगर कंफर्म हो गया कि एयरक्राफ्ट आपका ही है तो वो फिर आपको लेफ्ट राइट स्ट्रेट जिस भी टाइप है, हाँ सर एक बजन साउंड से आ रही है सर। नाउ आल्सो अभी भी आ रही है, अभी तो सर लगातार हो गई वो कंटिन्यू। माइक ऑन है क्या? Tell me now, how about it? अभी ठीक है सर, अब ठीक। अच्छा ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इनटू नोटिस, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इरिटेशन रहता है या फिर अगर आपको कंफर्टेबल नहीं रहेगा तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। डन, चलो। नाउ कंडीशन इज आपका एयरक्राफ्ट लॉस्ट हो गया, तो रडार स्क्रीन पे वो आपको देख के बताएगा कि कैसे आप रनवे पे सेफ लैंडिंग कर सको, ठीक है। सो वो आपको गाइड करेगा टू लैंड एट दिस रनवे। कौन? एटीसी। सो हाउ दिस कॉल कैन गो, हाउ दिस कॉल कैन गो, हैव अ लुक आउट। आगे से फर्दर कॉल देता हूं कंटिन्यूअस, बस ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। सो हमने रडार वेक्टरिंग रिक्वेस्ट कर दिया, अब एटीसी क्या बोलेगा फर्दर, हैव अ लुक। विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट इंडिया, जमशेदपुर टावर, turn left for 05 nautical mile to indicate your position। आप अपना पोजीशन इंडिकेट करेंगे, इसके लिए 05 नॉटिकल माइल टर्न करिए। आप ऑडियो पे तो अवेलेबल हो, वीडियो में आप श्योर नहीं हो, तो वीडियो कौन श्योर करेगा? एटीसी। सो फर्दर आप क्या बोलोगे? टर्निंग लेफ्ट फॉर 05 नॉटिकल माइल, विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट इंडिया। तो आपने 5 नॉटिकल माइल टर्न मारा। अगर उसको ये मूवमेंट ऑब्जर्व हुआ
तब वो डबल श्योर हो जाएगा कि यस यू आर द राइट एयरक्राफ्ट। ठीक है, नाउ मूवमेंट ऑब्जर्व्ड जमशेदपुर टावर, turn 10 nautical mile right and correction, turn right 90 degree and straight ahead for, ठीक है, straight ahead for 40 nautical mile। यानी उसने आपको बोला, सपोज ये आपका, मैं साथ ही साथ पोजीशन भी इंडिकेट करता हूं, ये आपका एयरक्राफ्ट है, उसने आपको बोला कि दाएं साइड में टर्न करिए और 40 नॉटिकल माइल के लिए प्रोसीड करिए, यानी आप ऐसा करके 40 नॉटिकल माइल प्रोसीड कर रहे हो एंड आपका सपोज रनवे रहा ये, सेम हमने जैसा पढ़ा था ना कि एक लड़की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर ट्रेवल करती है, फिर नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर ट्रेवल करती है, फिर ईस्ट लेफ्ट टर्न करके 4 किलोमीटर ट्रेवल करती है। नाउ टेल मी कि हाउ फार दिस गर्ल इज फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट। ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने रीजनिंग में पढ़ा होगा कभी। सिमिलरली ऐसा ही सीन क्रिएट होगा इधर। ठीक है, तो आपको एटीसी ने कहा कि राइट साइड टर्न करके 40 नॉटिकल माइल आगे बढ़िए। डन, तो आप बोलोगे रॉजर, टर्निंग राइट फॉर 980 डिग्री एंड प्रोसीड अहेड फॉर 40 नॉटिकल माइल। तो अब देखो, अब इस केस में आपको बस आगे बढ़ते रहना है, बायां दायां किधर लैंड करना है, कहां पे प्रोसीड करना है, ये सारा इंस्ट्रक्शन आपको एटीसी देता रहेगा। ठीक है, तो आपने दायां टर्न करके 40 नॉटिकल माइल डिस्टेंस आगे बढ़ा ली। अब रनवे रहा ये, फिर आपको एटीसी से कॉल आया, विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट इंडिया, टर्न लेफ्ट 980 डिग्री एंड स्ट्रेट अहेड, ठीक है, स्ट्रेट अहेड फॉर 20 नॉटिकल माइल। यानी आपको यहां से बाएं टर्न करने के लिए बोला गया और 20 नॉटिकल माइल आगे बढ़ने बोला गया। तो आप उसको कंफर्मेशन दोगे, रॉजर, टर्निंग लेफ्ट फॉर 980 डिग्री एंड प्रोसीड अहेड फॉर 20 नॉटिकल माइल, विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट इंडिया। तो आप पहुंच गए इस पॉइंट पे, फिर एटीसी से कॉल आएगा, क्या, विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट इंडिया, जमशेदपुर टावर, टर्न राइट फॉर 980 डिग्री, runway 27 is ahead of you। ठीक है, आप अब दाएं साइड टर्न करिए, रनवे 27 आपको दिखेगा। ठीक है, अहेड ऑफ यू। सो आप मारो राइट टर्न। ठीक है, टर्निंग राइट फॉर 980 डिग्री, रनवे 27 इन साइट दिख रहा है, रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर लैंडिंग। बताइए लैंड करूं कि नहीं करूं, इंस्ट्रक्शन दीजिए। तो वो बोल देगा क्लियर फॉर लैंडिंग जमशेदपुर टावर, आप भी क्लियर फॉर लैंडिंग बोल के लैंड कर जाओ। तो कुल मिला के क्या हुआ, आपका एयरक्राफ्ट जो कहीं रास्ता भटक गया था उसको बायां दायां मूव करवा के रनवे पे ले जा करके लैंड करवा दिया गया। इसी पूरे प्रोग्राम को बोलते हैं रेडार वेक्टरिंग। आपको वेक्टर करवाया उसने अपने इंस्ट्रक्शन से और आपके मूवमेंट को ऑब्जर्व किया गया ओवर द रेडार। क्लियर? समझ में आया सबको? छोटे छोटे गॉसिप्स थे सर बस। ये वो क्वेश्चन है ना कि हम 50 नॉटिकल माइल दूर हैं वीजी ये जमशेदपुर से, हमारा नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया, इसके बाद हुआ है ना सर ये कंडीशन ये सारी? उसके बाद ही यस, ये ठीक है। सो
तो कुल मिला के आपका एयरक्राफ्ट का नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया, मींस आपका एयरक्राफ्ट लॉस्ट है, खो गया है, आपको नहीं पता है आप कहाँ हो। तो कौन बताएगा? एयर ट्रैफिक सर्विसेज। कैसे? रेडार पे देख के। तो आप एटीसी का हेल्प करने के लिए अपना लास्ट नोन पोजीशन ट्रांसमिट करते हो ताकि वो आपको जल्दी से जल्दी ढूंढ पाए। अदरवाइज भी वो ढूंढ लेगा, बट दिस इज ए प्रोटोकॉल कि आप उसको लास्ट नोन पोजीशन बताते हो। तो आपने बताया कि 50 नॉटिकल माइल दूर थे जमशेदपुर से लास्ट नोन पोजीशन, और आप अपना रेडियल रूट करंट पोजीशन पूरा का पूरा आप बताओगे तो लोकेट कर लेगा कि ये एयरक्राफ्ट है। फिर भी रेडार पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं, बाएं दाएं मूवमेंट करवा के आपके मूवमेंट को वो ऑब्जर्व करेगा और कंफर्म करेगा कि इज दैट यू ओनली और नॉट। जब वो डबल श्योर हो जाएगा कि ये आप ही का एयरक्राफ्ट है, तब वो आपको फिर फर्दर वेक्टर करवा के, मतलब इंस्ट्रक्शंस दे दे के लैंड करवाएगा टू द रनवे। क्लियर? क्लियर सर। सो दीज आर द सिंपल गॉसिप्स, कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है कि नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया तो आपको लैंड करना है, खुद तो पता नहीं चलेगा कि कैसे करोगे। कौन लैंड करवाएगा? एटीसी। तो एटीसी जब अपने कमांड के अंदर आपको लैंडिंग करवाएगा, दैट इज नोन एज रेडार वेक्टरिंग, दैट्स ऑल। ठीक है? सो ये वाला क्वेश्चन भी कुछ एक बार एग्जाम में देखने को मिला था। सो दिस हैज आल्सो बीन टॉट टू यू। नाउ almost all the conditions of RT calls has been covered till now। हमने सब कुछ कवर कर लिया है, सब कुछ बता दिया। ठीक है? इसके अलावा आप खुद से ये वाला नोट थ्रू आउट द नोट, जो भी 32 33 पेजेस हैं इसमें, ठीक है, 32 पेजेस हैं, एक एक करके सारा कंडीशन पे नजर मारिए और लेट मी नो कि कौन सा कॉल आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। along with it आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। अब तो आप अपने से लग जाइए अपने प्रैक्टिस पे, ठीक है? डोंट बी ब्लाइंडली ट्रस्टेड ओवर द क्लास, क्योंकि क्लास में हम आपको मैक्सिमम 2 कॉल प्रैक्टिस करवा सकते हैं इन एन ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर सेशन। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको ऑनलाइन बोलने में कई बार नेटवर्क इशू आता है, कई बार सिंक्रोनाइजेशन इशू आता है कि ऑनलाइन आंसर भी करना है, लिखना भी है, फंस के बोल रहे हो, या फिर आपका स्टेज परफॉर्मेंस वाला जो सिंड्रोम है वो आपको साथ नहीं देता है कि ऑन टाइम आप सही कॉल दे पाओ, या फिर आप एक फास्ट स्टूडेंट हो, कोई दूसरा जो क्लास में आंसर कर रहा है वो स्लो आंसर कर रहा है, तो उसकी वजह से आपका प्रैक्टिस स्लो हो रहा है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हेन यू टोटली डिपेंडेंट ऑन द क्लास। तो आप इसको कैसे सरपास कर सकते हो? एट योर ओन। खुद से प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा कर सको। ठीक है? तो क्लास में मैं मैक्सिमम 2 घंटे में 2 कॉल प्रैक्टिस करवा पाऊंगा, बट आप अपने से 2 घंटे में, ट्रस्ट मी, 2 घंटे में कम से कम 10 कॉल प्रैक्टिस कर लोगे। कम से कम 10 का बोल रहा हूं। फिर आप बोलोगे कि सर एग्जाम तो आधे घंटे का होता है, तो 2 घंटे में मैक्सिमम 4 कॉल प्रैक्टिस कर पाएंगे। नहीं, आप खुद से कभी घर पे प्रैक्टिस करके देखो, एक कॉल के आंसर में 5 मिनट से ज्यादा टाइम किसी भी हालत में नहीं लगेगा आपको। तो जब आप खुद से प्रैक्टिस करने बैठोगे, 2 घंटे में 10-10 कॉल निपट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे, यू विल डू मोर ऑफ द प्रैक्टिस इन कंपैरिजन विद क्लासेस। तो डेली क्लास में, ठीक है, 2 कॉल 3 कॉल से ज्यादा तो हो नहीं सकता है किसी भी केस में। तो ये तो क्लास में आप डाउट क्लियरेंस के लिए रहेंगे या फिर एक स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग के लिए रहेंगे, लेकिन आपका खुद का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, खुद का बिल्डिंग फॉर द एग्जामिनेशन प्रैक्टिस टोटली डिपेंड ऑफ योर प्रैक्टिस ऑफ योर सेल्फ। खुद से जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर रहोगे इन कंपैरिजन विद अदर्स। ठीक है? तो पार्ट 1 सेशन खत्म होता है यहीं पे। आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए। कुछ एक टॉपिक अगर आपको लग रहा हो कि सर आपने नहीं पढ़ाया, या आपको लग रहा होगा कि ये वाला टॉपिक मिलता जुलता है किसी टॉपिक से, बट फिर भी मेरे को ये वाला कंडीशन स्पेशली बताओ, लाइक सियरा चार्ली माइक हैड आस्क्ड
इसे डाउन विंड पे जो VFR से IFR, सॉरी IFR से VFR चेंज ओवर करते हैं, इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बताइए। सिमिलरली यू कैन आस्क कि सर आपके हिसाब से वो कॉल स्टैंडर्ड होगा, बट मुझे एग्जांपल के साथ ये वाला कंडीशन थोड़ा एक बार और बताइए। तो यू कैन आस्क इन द क्लासेस, ठीक है, बट डोंट बी डिपेंडेंट ऑन द क्लासेस फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको खुद से करना है। डन। सो आई विल कवर वन मोर very minute topic and then I'll announce the end of the part 1 session. ठीक है, so you can see almost 20 lectures it has taken और हमारा part 1 का सिलेबस खत्म। आज के बाद से आप प्रैक्टिस करो at your own in class। 2 कॉल part 1 के प्रैक्टिस होंगे और part 2 के टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे फर्दर, ठीक है। Now the last condition for the part 1 session is aircraft crash calls, ठीक है। क्रैश डजंट ऑलवेज मीन लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है, बट ये वाला कंडीशन आई थिंक हमने पहले भी देखा था, मेडे को प्रैक्टिस करते टाइम, ठीक है। व्हाट इफ योर एयरक्राफ्ट क्रैश, अगर आपका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया तो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, हम पॉजिटिव रहेंगे कि कोई लाइफ लॉस नहीं होगा, ठीक है। नाउ सपोज कुछ एक ऐसा कॉल भी मिलेगा, हाँ, कुछ एक ऐसा कंडीशन भी मिलेगा, यू आर क्रैश्ड एट सम पोजीशन लिखा रहेगा। Someone is trying to saying something? So suppose आपको कई बार ऐसा कंडीशन देखने को मिल सकता है कि you are crashed at some position. So how that call will go? Crash call always go with mayday, ठीक है। So suppose कंडीशन लिखा है कि you have crashed 50 nautical mile near इंदौर, ठीक है, कि इंदौर के आसपास आप क्रैश कर गए। So how that call will go? Just have a look. Very simple. Mayday, mayday, mayday. All stations, ठीक है, सारे स्टेशंस को, नॉट ओनली ATC, सबको बताना पड़ेगा कि आप क्रैश कर चुके हो, ताकि हमने एक पेन में कंडीशन पढ़ा था ना, व्हेन अदर्स आर क्रैशिंग, तो उसको रिपोर्ट किया जाएगा पेन से। तो आपके क्रैश को कोई दूसरा भी रिपोर्ट करे, इसके लिए कॉल जाएगा ऑल स्टेशंस। मेडे मेडे मेडे, ऑल स्टेशंस, विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर किलो, ठीक है। एयरक्राफ्ट क्रैश्ड about 50 nautical mile आउटबाउंड इंदौर, इंदौर से 50 nautical mile बाहर हमारा एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया। तो क्या हुआ? एयरक्राफ्ट सफर्स सीवियर स्ट्रक्चरल डैमेज, एयरक्राफ्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर डैमेज हुआ ऑन अ सीरियस कंडीशन। ऑल क्रू एंड पैसेंजर आर सेफ बट इंजर्ड, सब लोग सेफ हैं लेकिन इंजर्ड है। इवैक्यूएशन कंप्लीटेड, पैसेंजर ऑन बोर्ड 120, 120 पैसेंजर है टोटल। रिक्वेस्ट सर्च एंड रेस्क्यू प्रोसीजर गाइड, SARPG, आपको शॉर्ट फॉर्म में ये भी कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, सर्च एंड रेस्क्यू प्रोसीजर गाइड, या फिर रिक्वेस्ट फायर फाइटिंग सर्विसेज एंड सर्च एंड रेस्क्यू टीम, ठीक है। मेन है सर्च एंड रेस्क्यू टीम, रिक्वेस्ट सर्च एंड रेस्क्यू टीम एंड मेडिकल सर्विसेज फॉर अप्रोक्सीमेटली 20 पैसेंजर, यानी आउट ऑफ 120 पैसेंजर, 20 पैसेंजर्स के लिए आपको एम्बुलेंस लाने की जरूरत है, बिकॉज दे आर सीरियसली इंजर्ड, ठीक है। सो हमारा होप रहेगा बी पॉजिटिव, क्रैश हुआ, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर डैमेज हुआ, बट सारे क्रू और पैसेंजर सेफ है, आउट ऑफ विच 20 को सीरियस इंजरी हुई है, तो उसके लिए मेडिकल सर्विसेज का व्यवस्था करिए। बाकी 100 के लिए आप बस भी लेके आओगे तो चलेगा, ठीक है। अंडरस्टूड दिस वन, क्रैश कॉल? ठीक है, सो दिस वाज द
हाँ, go ahead. सर मुझे एक डाउट है, इसमें तो ELT ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा ना सर, इम्पैक्ट ELT वाला? on होगा ऑटोमेटिक। हाँ, ELT सर ऑटोमेटिक ऑन सर होगा। उसके पास उसके हमारा क्रैश उसके कॉल का इंफॉर्मेशन, क्रैश तो इंफॉर्मेशन चले जाएगा, पर हमें तभी भी बोलना है क्या सर ये मेडे मेडे पूरा बिल्कुल अपना? कंटिन्यूस नहीं, एक बार see when you are making a crash landing event, जब आप क्रैश लैंडिंग करते हैं तब भी आपका ELT ऑन हो ही जाता है फॉर अ वाइल, क्योंकि 4.5G से ज्यादा का इम्पैक्ट पड़ेगा। बट जब आप क्रैश लैंडिंग कर रहे हो मींस लैंडिंग अंडर नॉट योर फुल कंट्रोल, तो आप VHF पे भी कॉल देते हो अगर आप कंट्रोल में हो तो। अगर आपका एयरक्राफ्ट कंट्रोल में है तो आप VHF पे भी कॉल देके बताते हो। खेत में लैंडिंग किए तो अगर 4.5G का इम्पैक्ट नहीं पड़ा है तो ELT ऑन नहीं हुआ। जनरली हो जाना चाहिए, बट व्हाट इफ नहीं हुआ। खेत में होता है ना, कई बार सुना ना कि खेत में जहाज उतार दिया और सारे यात्री सेफ हैं, तो उस केस में आपको खुद ही रिपोर्ट करना पड़ेगा VHF पे। ठीक है। एक दो फ्लाइंग क्लब के तो ऐसे एक दो फ्लाइंग क्लब के तो ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं कि एयरक्राफ्ट उधर खेत में उल्टा पड़ा है, किसी को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला। ठीक है। सुबह जाके किसी ने देखा कि अरे एयरक्राफ्ट उल्टा पड़ा हुआ है, या फिर उसके पैसेंजर या पायलट ने खुद ही रिपोर्ट किया कि हम खेत में गिर गए हैं। ठीक है, तो ऐसे भी केस हुए। आई वुड नॉट लाइक टू टेक सम नेम्स, बट आई हैव बीन सीन एन एग्जांपल। एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, वापस उसको ट्रक में उठा के भर के लेके चला गया, ना ATC को पता चला और ना ELT एक्टिवेट हुआ। यू कैन अज्यूम। सो दीज आर द सिनेरियो होते हैं। ठीक है, क्रैश कॉल आपको रिपोर्ट करना पड़ सकता है। ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ थ्योरेटिकल सेशन कंप्लीटली। ठीक है, एंड ऑफ थ्योरेटिकल सेशन फॉर पार्ट 1। आई होप नो मोर टॉपिक लेफ्ट, बट जस्ट बी एश्योर्ड एट योर ऑन। पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, पूरा सिलेबस को 32 पेज का नोट है, एक बार फिर से गो थ्रू द टॉपिक्स। ठीक है, लेट मी नो अगर कोई टॉपिक बचा हुआ रह गया है तो, या फिर लेट मी नो एनी एडिशनल टॉपिक यू हैव सीन इन एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट हमने क्लास में उसको एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि हो सकता है मैं किसी क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड क्वेश्चन समझ के आपको स्पेसिफिकली प्रैक्टिस नहीं करवाया होगा, लाइक सम ऑफ द मेडे एंड पैन पैन कॉल। ठीक है, मैंने उसको इसलिए प्रैक्टिस नहीं करवाया होगा क्योंकि वो मिलते जुलते कॉल्स हैं, तो हर एक टाइप का तो प्रैक्टिस नहीं करवा पाऊंगा इन द क्लास, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट आप वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे बीइंग अ बिगिनर कि सर ये वाला कॉल मेरे को स्पेसिफिकली समझाइए, अलग से बताइए। तो अगर ऐसे भी कंडीशंस आपको देखने को मिलते हैं, डू लेट मी नो। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ सेशन फर्स्ट। we'll meet tomorrow. ठीक है, and we'll start with part 2 calls. Your exam is started with 10th of February, so I'll hope कि आप लोग खुद से ज्यादा प्रैक्टिस करो, अच्छा प्रैक्टिस करो, so that you can cover up your syllabus within January only. ठीक है, 2-3 दिन में सब फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद आप अपना पूरा का पूरा फोकस करो प्रैक्टिस पे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम फ्रेम से, अपना बिजी टाइम में से कुछ एक टाइम निकालो और जितना ज्यादा रगड़ के प्रैक्टिस करो कर लो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन सेट्स आपको ड्राइव लिंक पे दिए गए हैं उसका कम से कम 3 बार रिवीजन मारो, कम से कम 3 बार। क्वेश्चन आंसर लिखे हुए लिख लिख के नोटबुक खत्म कर देना है, तभी आप RT में एक अच्छे कैंडिडेट की तरह अपीयर हो सकते हैं। नहीं तो कुछ ना कुछ हमेशा मिसिंग रहेगा। आप आंसर करने जाओगे स्टेटमेंट नहीं बन पाएगा, आप आंसर करने जाओगे आपको याद नहीं आएगा, तो जितना लिखोगे उतना ज्यादा मैच्योरिटी आएगी। ठीक है, एंड एज आई ऑलवेज सेज, पहले भी बोला था, एक बहुत वास्ट कोटेशन है ना इन द फील्ड ऑफ बी पॉजिटिव मोटिवेशन, कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यू कैन ओनली बी परफेक्ट व्हेन यू डू प्रैक्टिस।
किसी ने ये नहीं कहा कि नॉलेज मेक्स मैन परफेक्ट, किसी ने ये नहीं कहा कि इंटेलिजेंस मेक्स मैन परफेक्ट, किसी ने ये नहीं कहा कि हार्ड वर्क मेक्स मैन परफेक्ट, स्मार्ट वर्क मेक्स मैन परफेक्ट, नथिंग. The only thing makes you perfect is the practice. The more you will do, more you near to the perfection. और आरटी में परफेक्ट जब तक आप नहीं रहोगे तब तक आपको वहां पे नर्वसनेस ऐसा खाएगी कि आप आंसर नहीं कर पाओगे. ट्रस्ट मी. तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा बेटर रिजल्ट. ठीक है. सो इट इज अप टू यू. I had covered the syllabus 15 days before the exam starting. Okay, that is for sure. सारा कुछ प्रैक्टिस करते रहो. डेली हम लोग मिलते रहेंगे so that we can discuss some of the part 1 and some of the part 2. But results is in your hand. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रिजल्ट आएगा. ठीक है. So with this note, I'd like to close the session here today only. We'll meet tomorrow same time 9 o'clock. ठीक है. ओके सर. चलो. गुड नाइट फॉर ऑल. गुड नाइट फॉर टुडे. विल मीट टुमारो. ठीक है. प्रैक्टिस करिए आप लोग और डाउट्स लेके आइए. जितना ज्यादा डाउट्स लेके आएंगे उतना ज्यादा आई विल फील हैप्पी एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस आल्सो. चलो. गुड नाइट टुडे. गुड नाइट सर. बाय बाय. नाइट. गुड